Hello aspirants, welcome to Eternal Nursing Education and hope you all are doing good. कैसे हैं आप लोग? All good? How was your let me know कि आप लोग का जो NORCET Pre का 12 एग्जाम गया, NORCET Pre 8.0, how was the exam? Was it good? How was the paper? Was it moderate or tough? Okay, let us know. Okay, and the important questions which were given to you by sir, was it useful or not? Let us know. And be hopeful and completely prepared for your upcoming mains exams as well as your RRB questions. RRB exam is also there. आप लोग का जो डेट फाइनल हो चुका है 29th of April. Okay, so prepare yourselves for that. So today we are here to cover an important topic, that is hydrocephalus. So today we'll study about what is hydrocephalus, ठीक है? What are its causes, what are its types, as well as to whom it can affect, and what are the diagnosis criteria as well as the treatment procedures. Okay, so let's understand that is what is your hydrocephalus. See, hydro means what you understand, no? आपका जो हमारा जो इंट्राक्रैनियल स्पेस, व्हाट इज द इंट्राक्रैनियल स्पेस ना, इन दैट स्पेस अगर आपका CSF accumulation is increasing, accumulation of CSF fluid more than the normal, beyond than the normal, leads to the condition that is called as hydrocephalus. Okay, so what is hydrocephalus? That is increased or excessive accumulation of CSF. ठीक है, CSF क्या है? What is CSF? As you all know, this is cerebrospinal fluid. Very good. Cerebrospinal fluid. अच्छा, इसका नॉर्मल कितना है? What is the normal amount? Just a second, I need an eraser. Okay. नॉर्मल अमाउंट इज आपका एवरीडे के बेसिस पे ये 150 ml नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है. बट एवरी डे योर CSF इज प्रोड्यूस्ड एज एन अमाउंट ऑफ 500 ml प्रोड्यूस होता है और रीएब्जॉर्ब भी होता है. ठीक है, am I clear? CSF का नॉर्मल वैल्यू इज 150 ml, बट ये जो है आपका नॉर्मल बेसिस पे, एवरीडे बेसिस पे इट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड इनटू 500 ml और उतना वो एब्सॉर्ब हो भी जाता है. दैट मीन्स इट इज मेंटेनिंग अ बैलेंस इन बिटवीन प्रोडक्शन एंड योर रीएब्सॉर्प्शन. ठीक है, रीएब्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन के बीच में और प्रोडक्शन के बीच में जो बैलेंस इट इज मेंटेनिंग, दैट इज फॉर द नॉर्मल होमोजेनिक स्टेटस ऑफ योर बॉडी. लेकिन जब प्रोड्यूसिंग अमाउंट और रीएब्सॉर्बिंग अमाउंट जब इम्बैलेंस हो जाता है, दैट इज लीडिंग टू हाइड्रोसेफेलस. Clear? See, your choroid plexus, just a second. Choroid plexus in your ventricular system, it is responsible for producing CSF. ठीक है, लेकिन when, और ये जब क्या होगा, ये आपका अगेन रीअब्सॉर्ब होता है. ठीक है, in your arachnoid villi. It is produced by your CSF is produced by your choroid plexus of the ventricular system and it is reabsorbed by the arachnoid villi. ठीक है, but whenever due to any etiological factors, some underlying conditions, what happens? Choroid plexus produces excessive amount of your CSF that leads to deposition of the CSF in your intracranial spaces. That leads to excessive accumulation of CSF and the condition is called as your हाइड्रोसेफेलस. क्लियर? am I clear? आपको आइडिया आ गया क्या हो सकता है ये चीज? ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है बाय योर choroid plexus एंड इट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय योर arachnoid villi. ठीक है, तो दैट इज द बैलेंस, इट शुड बी मेंटेन प्रॉपरली. ठीक है, और अगर जब ये बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता, जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस होता है आपका जो CSF है, जो एक्सेसिव अमाउंट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से कि वो रीअब्सॉर्ब प्रॉपरली नहीं हो पाता है. ठीक है, तो वो एक्सेसिव डिपोजिशंस कहाँ पे होते हैं? इन योर इंट्राक्रैनियल स्पेसेस. दैट लीड्स टू अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज योर हाइड्रोसेफेलस. am I clear? ठीक है, सो इसका क्या क्या कॉजेस हो सकता है? व्हाट आर द कॉजेस? बेसिकली इन चिल्ड्रन इट कैन बी ड्यू टू कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम. It is can be due to
congenital rubella syndrome, ठीक है, या फिर एनी अंडरलाइंग इन्फेक्शंस, yes, any untreated pneumonia और meningitis, ठीक है, वो कॉज हो सकता है, या फिर एनी ट्रॉमा, ICH माने इंट्राक्रैनियल हेमरेज, इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकते हैं आपको, कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम, अंडरलाइंग एनी इन्फेक्शंस, एनी ट्रॉमा, एनी स्ट्रेस, ओके, एज वेल एज सम रेस्पिरेटरी अनट्रीटेड रेस्पिरेटरी कंडीशंस, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, दीज आर सम कॉजेस विच कैन लीड टू, और रिस्क फैक्टर्स भी आप बोल सकते हो, विच कैन लीड टू द कंडीशन ऑफ योर हाइड्रोसेफेलस। एम आई क्लियर? ठीक है, अच्छा, विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स। आपका जो हाइड्रोसेफेलस है, इट हैज गॉट सम टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले है कॉन्जेनिटल हाइड्रोसेफेलस, कॉन्जेनिटल हाइड्रोसेफेलस, and it's the most important one is your communicating hydrocephalus. Another one is your non-communicating hydrocephalus, ठीक है। आपका जो हाइड्रोसेफेलस है ये कंप्लीटली डिवाइडेड है इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज और थ्री टाइप्स, थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दैट इज योर कॉन्जेनिटल हाइड्रोसेफेलस, communicating hydrocephalus, non-communicating, and other types are also there like your acquired hydrocephalus, okay। तो हम इन तीन मेजर सिस्टम्स के बारे में देखेंगे, थ्री मेजर टाइप्स जो कि आपको हाइड्रोसेफेलस करने के लिए कॉज कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस एंड व्हाट इज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड दिस, देन विल गो टू कॉन्जेनिटल, ओके। सी, लेट्स मेक अ टेबल। Communicating hydrocephalus. Why it happens? क्या होता है ना, whenever your choroid plexus is unable to produce an appropriate amount and it leads to a confusion, जिसकी वजह से वो excess amount of produce करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। choroid plexus is producing excess amount of your CSF due to any infection or trauma or any ये हो सकता है आपको ट्यूमर्स अगर हो सकते हैं, ठीक है, ओके, any CNS tumor is there or neurological tumor is there of any, okay, or for example in spinal defect can be there, जिसकी वजह से क्या होता है ना, choroid plexus is producing an excessive amount of CSF, तो ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CSF प्रोड्यूस करते हैं। जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CSF विल बी प्रोड्यूस, तो इट विल बी अनएबल टू बी एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली बाय योर इंट्राक्रैनियल स्पेसेस, जो आपका जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है, जो आपका अरेक्नॉइड विली है, ठीक है, वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट हैज ऑल्सो गॉट अ कैपेबिलिटी, राइट। सो व्हेनेवर योर excess amount of CSF is produced by choroid plexus, so it is unable to properly absorbed by your arachnoid villi, जिसकी वजह से हमें communicating hydrocephalus is being seen, okay। So inability of your arachnoid villi to absorb, to reabsorb, to reabsorb your CSF properly, ठीक है। Am I clear? So excess amount of CSF produce हो रहा है, yes, and inability of your arachnoid villi to reabsorb your CSF properly, ठीक है, that leads to the condition that is called as your communicating hydrocephalus, ठीक है। Another one is your non-communicating hydrocephalus। ये क्या है? See, it's a kind of an obstructive hydrocephalus,
ये जो है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस है। कैसे? इट हैपेंस ड्यू टू द इम्बैलेंस और द मिस कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन योर वेंट्रिकुलर सिस्टम एज वेल एज इन द अरेक्नॉइड सिस्टम। जब आपका जो कोरॉइड प्लेक्सस है वो जितना CSF इट इज प्रोड्यूसिंग द CSF, फिर उन दोनों में मीन्स कम्युनिकेशन हैपेंस कि दिस मच CSF आई एम प्रोड्यूसिंग, मैं इतना CSF प्रोड्यूस कर रहा हूं और अरेक्नॉइड विली को इतना रीएब्सॉर्ब करना है, ठीक है। लेकिन अगर उन दोनों में मिसकम्युनिकेशन हो जाए, देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन योर वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड योर अरेक्नॉइड विली, ड्यू टू विच एन एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ CSF टेक्स प्लेस एंड एक्यूमुलेशन हैपेंस इन द इंट्राक्रैनियल स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। इट इज एन इम्बैलेंस और आपका मिसकम्युनिकेशन किसके बीच में? बिटवीन योर वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड अरेक्नॉइड विली, ठीक है। अगर आपका देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन योर वेंट्रिकुलर सिस्टम और अरेक्नॉइड विली के बीच में अगर एक कम्युनिकेशन नहीं बैठ पा रहा है, ड्यू टू विच देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द CSF प्रोड्यूस एंड द CSF एब्जॉर्ब, दिस इज द प्रॉपर टर्म। आप कैसे यूज कर सकते हो? व्हाट इज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस? इम्बैलेंस बिटवीन CSF बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड CSF बीइंग रीअब्सॉर्ब। प्रोड्यूस कौन कर रहा है? कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम। रीअब्सॉर्ब कौन कर रहा है? अरेक्नॉइड विली। When there is an imbalance between these things, it leads to the obstruction of CSF, which is called as your non-communicating hydrocephalus. ठीक है? These are your types as well as causes of your hydrocephalus. Okay? ठीक है। अभी हम देखेंगे what are the important sign and symptoms by which we'll be understanding कि ये कैसे पता चल सकता है that the child is having or the adult is having your hydrocephalus. ठीक है? So important sign and symptoms are, first is your Mason sign. ओके, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो, ठीक है। पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि आपका जो एक चाइल्ड है उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं। कैन यू सी द पिक्चर? द चाइल्ड इज हैविंग अ बल्ज्ड हेड, ओके, बड़ा सा हेड, लार्ज हेड होगा उसमें। ऑब्वियसली देखो, वेन एवर द CSF इज गेट, एक बलून है, ठीक है, आप मान लीजिए एक बलून है, उस बलून में हम बहुत सारा पानी भर देंगे तो क्या हो जाएगा? बलून विल बी डायलेटेड, यस, बलून लार्ज हो जाएगा। ये सिमिलरली लाइक दैट, अगर हमारी इंट्राक्रैनियल स्पेसेस में अगर बहुत सारा CSF अगर डिपोजिशन हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली द फॉन्टेनल विल बी बल्ज फॉन्टेनल कह सकते हो, या फिर एनलार्ज हेड, ठीक है, हेड का साइज बड़ा हो जाएगा। क्लियर? एज अलॉन्ग विद दैट विल बी सीइंग मेसन साइन। मेसन साइन क्या होता है ना, जब हम स्कल को परकशन करते हैं, एट दैट टाइम एक क्रैक्ड पॉट, क्रैक्ड पॉट मीन्स टूटा हुआ जो पॉट आता है ना, जो मिट्टी का घड़ा है, न्यूरोकिन से, दैट पॉट का जो आवाज होता है, दैट काइंड ऑफ साउंड विल बी रिवील्ड। ओके, क्रैक्ड पॉट साउंड, cracked pot sound will be heard when the skull is being having a percussion. When we do the percussion of the skull, cracked pot sound is heard if the child is having your hydrocephalus. That is called as a Mason sign. Second is your enlarged fontanelle. Yes, as you can see in the picture, large head. Along with that, sunset eyes. Eyes are being rolled downwards. Eyes are being rolled and fixed downwards. Eyes जो है fixed हो जाएंगे towards downwards, नीचे की तरफ, ठीक है। Sunsetting sign और sunset sign और sunset eyes we can say, ठीक है। It is seen in hydrocephalus. It can be a question for you, ठीक है। Question it can ask that was sunset sign or sunset eyes is seen in hydrocephalus, ठीक है। और क्या हो सकता है? द चाइल्ड कैन ऑल्सो हैव सीजर्स, बच्चे को सीजर्स हो सकते हैं, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी कैन ऑल्सो हैपन टू इट। ओके, सो दिस आर सम इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स। इसमें आप सीजर्स भी ऐड कर लो, ठीक है। सीजर्स, इरिटेबिलिटी, लेथार्जी, द चाइल्ड विल बी क्राइंग, बच्चा बहुत इरिटेट होगा, द चाइल्ड विल बी क्राइंग। ओके,
बच्चा जो है और भी रोएगा, द बेबी विल बी क्राइंग, इरिटेटिंग, लेथार्जिक फील करेगा, सीजर्स हो सकता है, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, सीजर्स आते हैं तो आपको उसका एयरवे प्रॉपरली पेटेंट रखना है। सनसेट साइन कैन बी सीन, दिस इज इंपॉर्टेंट, मिस व्हेन साइन क्वेश्चन में आ सकता है, इन विच दिस कंडीशन इज सीन। Okay, then crackpot sound, enlarged fontanelle, large head, these are all the signs symptoms of your child having hydrocephalus. ठीक है, so how you gonna diagnose it? Okay, diagnosis आप कैसे करेंगे? First of all आपको उसका you have to measure the head circumference. हेड सर्कमफरेंस ऑफ द साइज शुड बी मेजर्ड। आपको बच्चे का जो हेड सर्कमफरेंस है दैट शुड बी मेजर्ड रेगुलरली एंड मॉनिटर फॉर अदर वाइटल साइंस लाइक योर ब्लड प्रेशर, ICP, इंट्राक्रैनियल प्रेशर राइज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, दिस कैन बी अ क्वेश्चन फॉर यू। हाइड्रोसेफेलस में इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज बीइंग इंक्रीज्ड बिकॉज इंट्राक्रैनियल स्पेसेस में CSF भर जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर राइजेस होंगे। ओके, प्रेशर विल बी राइज, वेंट्रिकुलर सिस्टम प्रेशर विल इंक्रीज ड्यू टू विच इंट्राक्रैनियल प्रेशर ICP इज इंक्रीजिंग। BP राइज हो सकता है, BP कैन इंक्रीज, इंट्राक्रैनियल प्रेशर कैन बी इंक्रीजिंग, yes, the baby can be tachycardia, yes, okay, and one more thing you can do is your neurological status. Neurological status should be assessed regularly and monitored for the other vital signs, that is your blood pressure, ICP, ठीक है, head circumference should be noted and as well as your neurological status should also be assessed. Along with that, CSF analysis should be done. ठीक है, आपका जो नॉर्मल CSF है उसका नॉर्मल प्रोटीन लेवल कितना होता है? 15 to 45, but in case of a hydrocephalus or bacterial pneumonia or meningitis के cases में the protein content is getting increased, as I told you in the meningitis class, जो मैंने आपका meningitis class लिया था उसमें as I had informed you कि protein level increase हो जाता है जब आपको bacterial meningitis है या फिर bacterial pneumonia हो सकता है। क्लियर? सो आपका अलॉन्ग विथ हाइड्रोसेफेलस में भी आपका CSF एनालिसिस जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, ठीक है। योर CSF कंटेंट विल बी इंक्रीजिंग, एनालाइजिंग द अमाउंट जो वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रोटीन इंक्रीज हो जाएगा, एज वेल एज योर ग्लूकोज कंटेंट विल बी रिड्यूस, ठीक है। दिस आर सम CSF एनालिसिस यू कैन डू। और हाँ, नॉर्मल CSF का कलर कैसे होता है? इट इज क्लियरलेस, इट इज कंप्लीटली क्लियर एंड ओडोरलेस, ओके। हमें क्लियर, कोई भी स्मेल, कोई भी फॉल स्मेल, क्लाउडी विजिबिलिटी कुछ नहीं होता है, कंप्लीटली क्लियर रहता है और वो कंप्लीटली ओडरलेस रहता है, ठीक है। हमें क्लियर? और अनदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लुम्बर पंक्चर कैन बी डन। आप लुम्बर पंक्चर करा सकते हो टू चेक फॉर द CSF, कैसा उसका कंटेंट है, क्या है, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। दिस आर द डायग्नोसिस, क्लियर। नेक्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए? What is management? मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं? सी, सबसे पहले आपको इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए सोचना चाहिए। द फर्स्ट गोल फॉर योर शुड बी टू रिड्यूस द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। कैसे? वो जो आपका जो एडिमा है, जो उसका जो हेड फॉन्टेनल जो है एनलार्ज और बल्जिंग फॉन्टेनल है, जो इंक्रीज हो गया है, बल्ज्ड फॉन्टेनल, अब वो एडिमा को कैसे कम कर सकते हो? यू कैन गिव ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, डायरेटिक्स कैन बी गिवन, ठीक है। और ये जो है कंप्लीटली यू कैन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, इट्स अ कंप्लीट हाइपरटोनिक इन नेचर। ये क्या करेगा? आपका एडिमा को रिड्यूस करवा सकता है, इट रिड्यूसेस द इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड इट्स वेरी हेल्पफुल इन हाइड्रोसेफेलस केसेस, ठीक है। और क्या करा सकते हैं हम उसको? व्हाट आर द मैनेजमेंट वी कैन डू? You can also check for the, and हाँ, one more thing I have not told you, और आपका डायग्नोसिस में MRI ऑफ द हेड, ठीक है, CT स्कैन एंड एक्सरे ऑफ द स्कल, ठीक है। Am I clear? तो CSF एनालिसिस कैन बी डन, लुम्बर पंक्चर, MRI ऑफ द हेड, CT स्कैन एंड एक्सरे ऑफ द स्कल कैन बी डन, ठीक है। और आपका मैनेजमेंट में और क्या कर सकते हैं? हम सर्जिकल मैनेजमेंट करा सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, शंट कैन बी अप्लाइड
ये क्या करेगा ना, जो एक्सेस ऑफ CSF है, फ्लूइड है, वो उसको ड्रेन आउट करा सकता है। ठीक है, हम वेंट्रोपेरिटोनियल शंट लगवा सकते हैं। ठीक, ओके, VP शंट, okay, for any or other shunts are also there, but we can also apply for the ventroperitoneal shunt, जो कि आपका एक्सेस ऑफ CSF फ्लूइड को वो ड्रेन आउट कर देगा। ठीक है, ओके, और फिर आपका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा? एज अ नर्स व्हाट वी कैन डू, नर्सिंग रोल क्या है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड चेक फॉर द वाइटल साइंस, ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर चेक करा सकते हैं, assess for the neurological status regularly, okay, intake output chart, okay, and provide a calm environment to the client, because उसको external stimuli से उसको problem हो सकता है, photosensitivity can happen to the child or the adult, okay, so make your environment dim and calm, okay, external stimuli को prevent करिए, जितना reduce हो सके उतना करिए, check for the signs of your seizures, okay, respiration rate, ABC maintain करना है। ठीक है, as well as you can check for the what are the diuretics, administer the medications properly, shunt का कितना ड्रेनेज है, कितना क्या है, कनेक्शन properly, you can go and assess for it। ठीक है, so these are some important points about your hydrocephalus. I hope the class was useful to you, okay, and do not forget to like, share and subscribe our class, okay, और ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल कंटेंट के लिए connect with us, okay, share the classes, go through it, any doubts you're having, okay, you can ask us in the comment section, we will answer you positively, okay, thank you, have a very good day।